Okay, so initially first we revise the theory of unit 6, and then also side by side we'll solve some MCQs on that part also. Okay, but these MCQs are not enough for the practice. ये आपको देखने के बाद ही समझ में आ रहा होगा. These are the only 21 MCQs. Okay, so these MCQs are not enough for the practice. You need वहाँ पे एग्जाम में इससे और भी वहाँ पे MCQs confirm वहाँ पे आने वाले. Okay, so it's better to prepare these MCQs also, and also prepare this PDF. ठीक है, so this cover all the topics from unit number 6. Okay, again this unit 6 a little bit lengthy compared with the other units. Okay, okay, so I hope this screen is visible to everyone now. So, okay, so let me start with the basic concept of the complex number. Okay, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक नहीं था, अदरवाइज ये इतना डिफिकल्ट यूनिट. ठीक है, बिकॉज इन यूर पैटर्न कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट, दैट यूनिट इज नॉट देयर इन M1. एक्चुअली M1 का सेकंड यूनिट था इन अ प्रीवियस पैटर्न, बट आपके पैटर्न से यूनिट मतलब दैट इज डिलीटेड डायरेक्टली फ्रॉम दी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग. ठीक है, तो इसलिए बेसिक जो कंसेप्ट है वो थोड़े बहुत रिवाइज करके हमें आगे जाना होगा, और उस पर भी आपको 100% क्वेश्चन आने वाले. ठीक है, ओके. So first is what, as we all know that any complex number is represented by x plus iy. This is the standard form of representation of a complex number. Okay, it's a large set, means we know that the all real numbers are lies in complex number. ठीक है, okay, so it's a large set. Just 1 minute, close again. Okay, ठीक है. Okay, so this is the general representation of complex number. Okay, z equal to x plus iy, where this x is called as real part and y is called as imaginary part. Okay, and these are the standard notation, क्योंकि यही notations शायद आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं. So remember this notation. R of z means the real part of this complex number, that is your x, and I of z means the imaginary part of this complex number, that is y. ठीक है. Next is what, how you calculate the modulus of the complex number, that is denoted by mod z, and that formula is under root of real part square plus imaginary part square. Okay, geometrically what this modulus represent, can anyone tell me geometrically? Sorry, correct. Okay, it's actually a distance, you can say distance from that point to origin. ठीक है, ये बेसिकली आपका पॉइंट ही है. कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको देखना कैसे, x, y जैसे. ठीक है, तो जो आप R2 प्लेन में, x एंड y एक्सिस प्लेन में जो चीजें आप करते हो ना, ओके, दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, ऐसे आपको उसको इमेजिन करना है. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ z. ठीक है, और आई कैन से द एंगल, दैट द फॉर्मूला फॉर दिस एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. ठीक है, दिस इक्वल टू थीटा. अगेन इन एवरी क्वाड्रेंट यू विल हैव अ डिफरेंट फॉर्मुलास टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. ओके, और सॉरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आने वाले, तो इसलिए कुछ ज़्यादा इन डिटेल में नहीं दिया. ओके, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दैट आर्गुमेंट फ्रॉम दिस वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, देयर इज वन मोर कंसेप्ट रिलेटेड विद दिस आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड, विच इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड जनरल आर्गुमेंट. ओके, दिस गिव्स यू द जनरल आर्गुमेंट. Okay, and there's one more part which is the principal argument, which lies between minus pi and pi. ठीक है, okay. Next is the polar form. So this polar form and exponential form, this you can say the alternative form of any given complex number. Z equal to xy, this is the Cartesian form. Cartesian word का मीनिंग क्या होता है, x and y में जो चीजें आपको दिखाई देती है, that is called as the Cartesian form. ठीक है, polar means what? Polar means what? If that function is defined in terms of r and theta, then we call that function to be function to be in polar form. ठीक है, so what is the polar form corresponding to this given complex number? x plus iy का alternative form आपको चाहिए, but in terms of r and theta, and that form is z equal to r in bracket cos theta plus I sin theta. ठीक है, so which is also equal to x plus iy, which is also equal to r in bracket cos theta plus I sin theta, where r is the modulus.
that you can calculate from this formula under root of x square plus y square. Theta is the argument or the amplitude, okay, tan inverse of y upon x. Okay, but there is one more famous theorem in complex number that is called as Euler's theorem, okay, which is there in G. ठीक है, ये एक फेमस थ्योरम है. इफ x is any real number then e raised to I theta or e raised to I x is equal to cos x plus I sin x. ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है क्योंकि मे बी मुझे पता नहीं कितने स्टूडेंट का ये बेस हो चुका है, कितने स्टूडेंट का नहीं हो चुका है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दिस बेसिक रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो फॉर एनी रियल नंबर x e raised to I x is equal to cos x plus I sin x. This is one of the famous theorem in complex number, and using this you can write this cos theta plus I sin theta, or you can replace this cos theta plus I sin theta by e raised to I theta, and that become the exponential form. ठीक है, इन पे कुछ ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ओके, क्योंकि दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, बट इसका यूज करके आपको कुछ आगे एग्जांपल सॉल्व करने या कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ऐसे वहां पे आ भी सकता है. ठीक है, तो कहीं पे ना कहीं पे इन सारी चीजों का आपको यूज करना ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको रियल नंबर का लॉग पता है, log 2 log 1, ये सारी चीज आपको पता है. ठीक है, सो हाउ यू कैलकुलेट अ लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट फॉर्मूला इज आल्सो देयर विद अस. ठीक है, सो इफ z is any given complex number then the logarithm of z is actually equal to log r. r we know that it's a modulus value, that is always a real number. आपको पता है मॉड्यूलस जब आप लेते हो, मॉड्यूलस मतलब डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा आपका क्या आने वाला है, रियल नंबर आने वाला है. ठीक है, तो आपको बस करना क्या, उस रियल नंबर का लॉग लेना है. दिस वी नो बिकॉज वी नो हाउ टू टेक अ लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर. सो log z equal to first term is log r. This is a real logarithmic term plus I in bracket theta plus 2n pi. So this is the general value. So what you can say from this, that the logarithm of complex number is not unique. Okay, so there are infinitely many values as you vary your n. ठीक है, इस पे भी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है. ओके, बट कुछ जगह पे उन्होंने यूज किया, तो बट स्टिल सो जस्ट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलेज. ठीक है, अभी एमसीक्यूज बैंक में भी इसके ऊपर कहीं पे भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, तो आने के चांसेस भी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर कहीं पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन अगर वो सेट करते तो प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए. एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसको चेक करके बस आपको वैल्यूज पुट करनी है. Okay, for example, so let me take one simple example so that you will understand all these formulas. ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. Let us take 1 plus I, simple example, है ना, 1 plus I, where real part is 1, imaginary part is also 1. Okay, can you tell me what is R? What is modulus of this complex number? What is modulus of this complex number? मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटरेक्शन चाहिए, आप बोलो. अभी तो कोई ये रेगुलर लेक्चर नहीं है. यस, 1 plus I का मॉड्यूलस क्या है, √2. ठीक है, बिकॉज रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 1, अंडर रूट ऑफ 1 square plus 1 square is √2. What is theta? Theta is tan inverse of y upon x, but y is 1, x is 1, so it is actually a tan inverse of 1. And what is tan inverse of 1? पाई बाई 4. ठीक है, तो आप देखो अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने आपको आर कैलकुलेट करके दिया है, कैसे करना है. ओके, आई थिंक दिस एग्जांपल इज इनफ. थीटा भी कैसे कैलकुलेट करना है, एज इट इज वैल्यूज पुट करके आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको समझ में आ जाएगा, और यू कैन डायरेक्टली पुट इन कैलकुलेटर आल्सो. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 4. अभी आप इसके करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं. व्हाट इज द पोलर फॉर्म? ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, तो उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, दैट इज आर, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म क्या आएगा, विच इज इक्वल टू आर इज √2, करेक्ट, in bracket cos theta is pi by 4 plus I times sin pi by 4. That is the polar form. And you can also write the exponential form, that is r e raised to I theta. Theta is pi by 4. Also you can calculate logarithm. ठीक है, what is that logarithm? Which is log of √2. You can keep this value as it is. ऑप्शन में यही होगा, इसके आगे नहीं आने वाला. So log r means log √2 plus I times your theta is pi by 4 plus 2n pi. That will be your logarithm. Okay, जैसे आप n वैरी करोगे वैसे वैसे वैल्यू वैरी होती जाएगी. These are the infinitely many values. Okay, there is one more concept with the logarithm. It's principle. जैसे मैंने आपको एम्पलीट्यूड के लिए बोला था, वैसे यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल कंसेप्ट है. प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जस्ट पुट n equal to 0. एक यूनिक वैल्यू आपको चाहिए, सो जस्ट पुट n equal to 0, then you will get a principal logarithm that is denoted by capital L. ठीक है, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. लॉगरिथम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है.
है ना, कि मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोलर फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, ओके, ई रेज टू आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, इनके ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, so this you can see the preliminaries that we need from the basic complex number. Okay, now you can start your actual syllabus. ठीक है, ओके, तो आगे जैसे आप एंड में जाओगे, एंड में इस यूनिट के जब आप एंड में जाओगे ना, तो वहां पे एक कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एंड कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला, दिस टू आर द फेमस रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उन रिजल्ट्स के लिए आपको कंपलसरी वहां पे डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स दोज डायग्राम्स आर नथिंग बट दी सर्कल्स, और वहां पे ज्यादातर केस में आपको सर्कल आने वाला है, ठीक है। बट नाउ वी आर इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन आपको कहीं पे भी ये नहीं आने वाला, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इस फॉर्म में तो कहीं पे भी नहीं आने वाला आपको सर्कल का इक्वेशन। आपको सर्कल का इक्वेशन आने वाला है बट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड दैट फॉर्म इज नथिंग बट जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। So always remember, modulus of z minus z naught is equal to r represent a circle, मतलब आपको रेगुलर सर्कल ड्रॉ करना है, so it represent a circle. Okay, so just 1 minute here. So it represent a circle whose centered is z naught and radius is r. Okay, so for example, okay, आपको मुझे आंसर देना है। For example, if I consider modulus of z minus 2 plus 3i is equal to 1, okay, can you tell me what is this? ये आपको चाहिए, ये नॉलेज आता है तो ये आपको लास्ट टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि कंपलसरी वहां पे डायग्राम है कॉची इंटीग्रल एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम के लिए। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही समझ में आता है कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर है, कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर है, एंड दैट थियरी टोटली डिपेंड ऑन दैट। यस, can anyone tell me how you draw this modulus of z minus 2 plus 3i is equal to 1? How you draw this? या क्या होता है ये, कैसे ड्रॉ करोगे आप इसको? सर्कल विद रेडियस 2,3, ओके, जस्ट टेक अस, अभी ये आपको पता नहीं, इसको मैंने आपको पहले क्लियर किया है, x प्लस आई वाई पॉइंट को कैसे याद रखना है आपको, x कॉमा वाई। सो दिस इज योर सेंटर, सेंटर मींस 2,3 पॉइंट लेना है कहीं पे भी। आई विल टेक हियर, दिस इज माय 2,3, and now just draw a circle with radius 1, okay, just draw a circle with radius 1। तो ये आपके डायग्राम है, ठीक है, तो मैंने और इसको सिंप्लीफाई करके भी नीचे दिया है। सो फॉर एग्जांपल z नॉट इक्वल टू, लेट अस टेक x नॉट प्लस i टाइम्स y नॉट, देन मॉडुलस ऑफ z माइनस इन ब्रैकेट x नॉट प्लस i टाइम्स y नॉट इक्वल टू r रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर्ड एट x नॉट कॉमा y नॉट एंड रेडियस इज r ना। ओके, नाउ आई विल आस्क वन मोर एग्जांपल, व्हाट इज दिस? z minus 2i is equal to, let us take 1, no problem। बोलो, you have to tell me center, आपको बस मुझे क्या बोलना है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, दैट इज इनफ। सेंटर रेडियस से आप डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। रेडियस 1, व्हाट इज सेंटर? 0,2। व्हाट हैपन इफ आई कंसीडर हियर प्लस साइन? 0,-2, ठीक है, तो यह आपको चेंज समझ में आना चाहिए। अगेन विल टेक द लास्ट एग्जांपल, इसके बाहर कुछ नहीं है फिर, ठीक है। z माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इस केस में क्या होगा सेंटर? 4,0। इफ आई टेक प्लस साइन हियर, इन दैट केस यू हैव टू टेक -4। तो आपको एट द एंड कंपेयर किससे करना है? इस नंबर से कंपेयर करना है, ठीक है, इससे कंपेयर करो, यू विल गेट योर x नॉट, यू विल गेट योर y नॉट, दैट विल बी योर सेंटर एंड r इज द रेडियस। फिर आपको फिर उसके बाद आपको वो डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड फिर आगे वो थियरी आ जाएगी, दैट यू विल कम टू नो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। ओके, तो ये एक पार्ट है। अभी ये 1 मार्क के लिए ऐसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक सेक्शन ऐड किया है। मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट लेस इक्वल r, ओके, व्हाट दिस रिप्रेजेंट? लेस इक्वल r मतलब इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ग्रेटर देन r मींस एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ओके। लेस इक्वल की वजह से इट आल्सो कवर द बाउंड्री, इक्वल भी आ रहा है ना, तो इट आल्सो कवर द बाउंड्री इन केस ऑफ दिस, ठीक है। सो लेस इक्वल मींस इंटीरियर, ग्रेटर देन मींस एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये वर्डिंग में आपको ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। 1 मार्क है, सिंपल 1 मार्क के मतलब लेवल 1 के। नेक्स्ट, ओके, इफ द रियल पार्ट r ऑफ z मींस रियल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल 0, तो ये क्या होता है, ये आप डायरेक्टली ड्रॉ कर पाओगे, तो इसलिए कुछ ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x होता है।
एक्स ग्रेटर इक्वल 0 ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स ग्रेटर इक्वल 0 मतलब एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव कौन से सेक्शन में आता है? इस सेक्शन में एक्स पॉजिटिव आता है। सो दैट रिप्रेजेंट राइट ऑफ दी वाई एक्सिस। ठीक है, ग्रेटर इक्वल में ये वाई एक्सिस भी कवर होगा, ग्रेटर इक्वल में ये वाई एक्सिस भी कवर होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स इफ दैट वैल्यू इज लेस देन 0। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इफ द रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0, ओके, व्हाट दिस रिप्रेजेंट। 4 ऑप्शन में 4 एरियाज गिवन होंगे। आपको क्या पता है? रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब होता है एक्स, एंड एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स निगेटिव कहाँ पे आता है? एक्स निगेटिव कहाँ पे आता है? इस सेक्शन में। हियर योर एक्स इज निगेटिव, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। सिमिलरली इमेजिनरी एक्सिस पे भी क्वेश्चन, सॉरी इमेजिनरी पार्ट पे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लाइक व्हाट इज द रीजन वेयर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है वाई, वाई ग्रेटर इक्वल 0 मतलब वाई पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव आपका कहाँ पे आता है? ऊपर आता है। ये दिस अपर हाफ यू कैन से दिस सेक्शन इज योर वाई पॉजिटिव सेक्शन। ओके, so above x-axis is the region, y greater equal 0 means above x-axis, and sorry यहाँ पे sign mistake है, this is less than, I will do that change, and y less than 0 represent the region below the x-axis। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस आपको रीजन आइडेंटिफाई करने के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक में ये डायग्राम या ये जो सर्कल के ग्राफ है इनको ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि उसके ऊपर ही थियरी डिपेंड है। ठीक है, इसलिए एक सेक्शन मैंने ऐड किया स्टैंडर्ड रीजन का। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे आपको पता है कि रियल में आप क्या बोलते हो? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज योर गिवन फंक्शन। ओके, हाउ यू एक्चुअली डिफाइन अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में जैसे आप मतलब जब भी आपको बोलना है कि लेट अस कंसिडर अ जनरल फंक्शन इन रियल, तो आप ऐसे ही लिखते हो, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रियल फंक्शन। वैसे कॉम्प्लेक्स में अगर आपको फंक्शन लेना है जनरल फंक्शन, तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। दिस इज माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फंक्शन वेयर दिस एफ ऑफ जेड इक्वल टू, अगेन दिस एफ ऑफ जेड इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो इट इज u ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स v ऑफ एक्स वाई, सो दैट इज w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ जेड, as we know that f of z is a complex number, so that can have a real so that f of z have a real part, a imaginary part, but it's a function. Okay, so it's a function in 2 variable, है ना, क्योंकि आपको पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो ये ऑलरेडी 2 वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, so f of z इक्वल टू u प्लस आई वी, वेर u is a function of 2 variable, v is a function of 2 variable, और in general w इक्वल टू एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, या सिंपली ओके, मुझे बस क्या कहना है यहाँ पे, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे लिखना है? योर कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय u प्लस आई वी। एफ ऑफ जेड इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय u प्लस आई वी। ओके, और एक्चुअली दिस u इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये बस एक याद रखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखना कैसे? एफ ऑफ जेड ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन। व्हाट इज दैट वैल्यू? जनरल वैल्यू क्या है एफ ऑफ जेड की? u ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स v ऑफ एक्स वाई। ओके, दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय w, दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय w। जैसे आप रियल में बोलते हैं ना, एफ ऑफ एक्स आपका रियल का फंक्शन है, वैसे एफ ऑफ जेड आपका कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है। ठीक है, ओके, एंड नाउ वी हैव टू डिफाइन द एनालिटिक फंक्शन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इसके ऊपर आपको 100% एमसीक्यूज है। ठीक है, सो बहुत सारे एमसीक्यूज इस पे क्रिएट हो सकते हैं। आपको गिवन होगा कि दिस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। ओके, पहले एक जनरल डेफिनेशन में आपको दे देता हूं, तो ये 1 मार्क के लिए आपको ये सारे डेफिनेशन याद रखने। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। ठीक है, if it is defined and has a derivative at every point in a neighborhood of z naught. Okay, अगर किसी भी फंक्शन को आपको एनालिटिक बोलना है at certain point z naught, okay, then what is the definition? That function must be defined at that point. पहले तो वो उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। सेकंड, उसके अराउंड अगर आप कोई भी एक नेबरहुड लेते हो, ओके, सो इन दैट नेबरहुड, ओके, डेरिवेटिव ऑफ f of z must be exist, okay, and has a derivative at every point in some, okay,
सॉरी इन सम मतलब देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, ओके, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड इन विच द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड। या सिंपली अगर आपको किसी भी फंक्शन को एनालिटिक बोलना है एट सर्टेन पॉइंट z इक्वल टू z नॉट, तो कंडीशन क्या है, पहले तो उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। सेकंड, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, नेबरहुड मतलब उसके अराउंड बस एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड इन विच दैट फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव, ठीक है, इन विच दैट फंक्शन हैज अ डेरिवेटिव। ओके, अभी इस डेफिनेशन से तो कहीं पे भी आप एनालिटिक चेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ थेरोटिकल डेफिनेशन, इट्स अ थेरोटिकल डेफिनेशन। तो इसका यूज करके यू कैन चेक वेदर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, ये आपको भी समझ में आ रहा है, इट्स अ थेरोटिकल डेफिनेशन। तो इसका यूज करके आप कहीं पे ये नहीं चेक कर पाओगे कि आपका ये गिवन फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे सेपरेट आपको मैथमेटिकल कंडीशन है, ठीक है, एंड यही यूज करके आपको सारे केसेस में चेक करना है वेदर अवर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, ठीक है। हाँ, एंड देयर आर फ्यू रिमार्क्स आल्सो। इसका प्रूफ ऑलरेडी उस पीडीएफ में, अगर आप नोट्स चेक करते हो ना क्लासरूम में, तो वहां पे इसका प्रूफ है। बट नाउ फॉर एमसीक्यूज ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आप बेटर वे आप ये एक बार रीड करके ही जाओ, ठीक है, नो नीड टू प्रिपेयर दिस प्रूफ आल्सो, ठीक है। सो व्हाट आर दोज रिजल्ट्स? एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि अगर आपका एफ ऑफ जेड ये फंक्शन एनालिटिक है, ओके, उसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, ओके, so analytic function of constant modulus, if that modulus is constant then that function itself is a constant, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी एक वर्ड मिसिंग है, विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या कि अगर एफ ऑफ जेड का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली रीड करके जाने, क्योंकि इनके प्रूफ बुक में है, या मैंने ऑलरेडी ये पार्ट कवर भी किया इन वर रेगुलर थ्योरी लेक्चर्स, बट राइट नाउ नो नीड टू प्रिपेयर दिस प्रूफ, ओके। जस्ट एक बार रीड करके आप जाओ, अगर कहीं पे एमसीक्यू आ जाता है तो यू कैन सॉल्व दैट एमसीक्यू, बिकॉज दिस आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। हाँ, तो अभी मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन दी है, ओके। आपको एक्चुअली क्या प्रिपेयर करना है, एक बार डेफिनेशन, ये सारी चीजें बस एक बार गो थ्रू करनी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आने वाला, ओके। बट आपको मैंने पहले क्लियर किया कि मैथमेटिकली हाउ यू चेक वेदर दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? दीज आर दी कॉचीज रीमान इक्वेशंस, ओके। इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसा होगा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स का यूनिट में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये ही आपका मेन पार्ट है, ओके। सो यूजिंग दिस सीआर इक्वेशंस ओनली यू कैन चेक वेदर दोज गिवन फंक्शंस आर एनालिटिक और नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन डिटेल में दिया है, बट ये जो फर्स्ट जो कंडीशन है ना, ये आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ऑल आवर गिवन फंक्शंस, जितने भी आपको सिलेबस में फंक्शन है, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिलता है, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए कुछ ज्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन मैंने दी है यहाँ पे कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं u एंड v के, है ना, दोज पार्शियल डेरिवेटिव्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन दैट रीजन r, ठीक है। देन व्हाट आर योर सीआर इक्वेशन, ठीक है। अब ये फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्चुअली क्या चल रहा है। आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा f of z इक्वल टू u प्लस i, या सिंपली एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन मतलब वो वेरिएबल में आने वाला है, ठीक है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन होगा, आपको क्या चेक करना है? चेक वेदर दिस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। मैं एग्जांपल लेने वाला हूं इमीडिएटली, चेक वेदर दिस गिवन फंक्शंस आर एनालिटिक और नॉट। तो उसमें दो कंडीशन है, मैथमेटिकली चेक करने के लिए आपके पास सिलेबस में दो कंडीशन है, वन इज द कार्टेशियन फॉर्म एंड सेकंड इज द पोलर फॉर्म, ठीक है। क्योंकि आपको वहां पे ये चेक करना पड़ता है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो कौन से वेरिएबल में गिवन है, ठीक है। इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यूज द कार्टेशियन फॉर्म, मींस दिस। इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पोलर, मींस आर एंड थीटा, यूज द पोलर फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने, यू हैव टू रिमेंबर बोथ दिस फॉर्मूलेज इन कार्टेशियन फॉर्म आल्सो एंड इन पोलर फॉर्म आल्सो, ओके। नाउ व्हाट आर द फॉर्मूलेज इन कार्टेशियन फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म में आपकी सीआर इक्वेशन क्या है? आपको करना क्या है, जो आपका रियल पार्ट है, लेट अस डिफरेंशिएट दिस पार्शियली, पार्शियली, क्योंकि ये टू वेरिएबल का फंक्शन है। सो लेट अस टेक द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. If this derivative is equal to derivative of v with respect to y, correct, that is ux equal to vy, and derivative of u with respect to y is equal to minus times v with respect to x, ठीक है। these are called these are nothing but CR equation, okay। तो ये आपका गिवन फंक्शन था, आपने क्या चेक किया है? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y if these two are equal and derivative of u with respect to y is equal to minus times derivative of v with respect to x. If that given function satisfies this condition, if that given function satisfies this condition, then we call that function to be analytic. ये आपको मैं चेक करके देने वाला हूँ, so don't worry. ठीक है, ये कैसे सब कुछ करने में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, so this is one of the mathematical tool from which you can check whether given function is analytic or not. ठीक है, अभी ये सेम रिजल्ट पोलर में कैसे चेंज होता है आप देखो. ठीक है, so right now we have the value of u and value of v but in terms of r and theta. अगर u की वैल्यू v की वैल्यू in terms of r and theta आती है, then how you check whether that given function is analytic or not. तो उसके लिए क्या रिजल्ट है, r into ur मतलब u का with respect to r derivative multiplied by r if that value is equal to v theta, correct, and r vr is equal to minus u theta, r vr equal to minus u theta, then we call that function to be analytic. Okay, at that point. ठीक है, और on that region r जो भी given region होगा वो. ठीक है, okay. Now before this let me take some examples directly, तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, now you have to tell me one by one. CR equation, this is called as Cauchy-Riemann equation for a function f of x equal to u of xy plus I times v of xy. ठीक है, ये एक्चुअली कॉमा है यहाँ पे यार, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक. द एनालिटिक आर, तो ये एक्स एंड वाई का फंक्शन है, एंड एक्स एंड वाई के फंक्शन के लिए सीआर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. ये आप याद ही रखो. ओके, तो पहले क्या चेक करना, u का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू v का विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, एंड u का विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू v का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस टाइम्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट सीआर इक्वेशन फॉर पोलर फंक्शन. ठीक है, आर एंड थीटा का फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या है, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा एंड आर वी आर इज इक्वल टू माइनस यू थीटा. अब ये 1/r मतलब इसको शिफ्ट करना होगा, तो आप देखो कहाँ पे यू आर इक्वल टू, या अभी आर यहाँ पे शिफ्ट करके आप चेक करो. सो यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा, ये कहाँ पे मैच हो रहा है, यू आर इज इक्वल टू, अभी ये मैच नहीं कर रहा है, हाँ यही है, यू आर इक्वल टू 1/r वी थीटा एंड वी आर इज इक्वल टू 1/r यू थीटा. सो दिस इज योर ऑप्शन. ठीक है, तो ऐसे 1 मार्क या सिंपल ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपको एग्जाम में. सो प्लीज प्रिपेयर दिस. नेक्स्ट, हाँ ये तक नहीं लिया, सो विल टेक दैट. हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक है, आई थिंक ये ऑप्शन होगा, बट ये नीचे भी रॉन्ग है ना, यू यू आ रहा है, तो दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, दैट यू कैन करेक्ट दैट, यू आर इज देयर. ठीक है, ये भी कॉमा है, तो ये चीजें आप याद रखो, जो मिस्टेक से आप याद रखो, एक्स कॉमा वाई यहाँ पे भी यू आर है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन टिक करो और उसमें थोड़ा बहुत करेक्ट करना होगा. ठीक है, ये मैं आपको बोलता हूँ, ये इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं जाएगा. हाँ, नाउ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ जेड, अभी ये एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि ये कार्टेशियन के ऊपर है, फॉर विच एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. ठीक है, एनालिटिक चेक करना है, या एनालिटिक का यूज करके आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो पहले आप अपना u कैलकुलेट करो, u मतलब रियल पार्ट. सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज योर रियल पार्ट, व्हाट इज योर रियल पार्ट, e रेज टू x cos y है ना, एंड v मतलब इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, i का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट क्या है, e रेज टू x sin ky. ठीक है, देन यू हैव टू राइट डाउन द सीआर इक्वेशन, तो शायद यहाँ पे उन्होंने दिया है. ठीक है, तो सीआर इक्वेशन के लिए आपको नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट सीआर इक्वेशन. आपके पास क्या सीआर इक्वेशन है, ux इज इक्वल टू वी वाई. ठीक है, सो डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलता है, मैं इरेज करने वाला हूँ बाद में ये, इसलिए आप रिकॉर्डिंग से भी ये सारे सोल्यूशन आप फिर से चेक कर सकते हो. ओके, सो ux इक्वल टू वी वाई, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ
बिकॉज when you differentiate u with respect to x, the other variable must be constant, इसलिए y आपका constant है, equal to vy, v का with respect to y, tell me that. cos ky. हाँ, अभी आप देखो आपको क्या गिवन है, ये फंक्शन एनालिटिक है. एनालिटिक है मतलब दैट फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, या सिंपली ux इक्वल टू वी वाई कंपल्सरी आना चाहिए तो ही वो एनालिटिक होता है. ठीक है, नाउ टू मेक दिस टू साइड्स इक्वल, के की वैल्यू आपको कंपल्सरी क्या लेनी होगी, 1 ही लेनी है ना. इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन ओनली फॉर k इक्वल टू 1, दिस LHS and RHS are equal, therefore this function is analytic only for k equal to 1. okay, is it clear? okay, now come to the next question. हाँ, अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी फंक्शन गिवन है, एनालिटिक है, आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो बट ये आराम थीटा का फंक्शन है, सो हियर u इज इक्वल टू r क्यूब cos 3 theta and v is equal to r cube sin k theta. ठीक है, सो लेट अस यूज दिस फर्स्ट रिजल्ट. ओके, हम अपने हिसाब से भी आप चाहो तो याद रखो वही जगह. ठीक है, क्या रिजल्ट है आपके पास, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा. मैं इस आर को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, ज्यादा कुछ लिखने में टाइम नहीं जाता. ओके, सो आर एज इट इज, यू का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव क्या आता है बोलो, 3r स्क्वायर कॉस 3 थीटा है ना, 3r स्क्वायर कॉस 3 थीटा. जब आप r से डिफरेंशिएट करते हो थीटा आपका कांस्टेंट होता है, इक्वल टू v का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r क्यूब कांस्टेंट है, एंड साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, साइन k थीटा का k कॉस ऑफ k थीटा. नाउ फॉर विच वैल्यूज दिस टू आर इक्वल, बोलो, for which k these two values are equal, these two sides are equal, k equal to 3. okay, because cos k theta, अगर cos 3 theta आपको लेना है तो k must be 3. ये सेकंड इक्वेशन का यूज ही नहीं है वहां पे. ठीक है, सो दैट k must be 3. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में टाइम वेस्ट मत करो, किसी भी एक इक्वेशन से आपको वो वैल्यू समझ में आती है, दैट विल बी फाइनल आंसर. अब ये 2 क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सिमिलर पैटर्न के और भी सारे क्वेश्चन वहां पे रहेंगे. ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑन एनालिटिक फंक्शन. Using analytic condition of analytic function, you have to find the values of k. ये भी क्वेश्चन आता है, या ऐसा भी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है, तो आपको चेक करना होगा हर एक फंक्शन की कि कहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, जहाँ पे नहीं ट्रू हो रही है विच इज नॉट एनालिटिक, जहाँ पे ट्रू हो रही है विच इज एनालिटिक. अभी कुछ रिजल्ट्स मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मतलब दिए आपको, सो दैट अगेन यू हैव टू रिमेंबर. If two function f of z and g of z are analytic, then their sum, मतलब दो एनालिटिक फंक्शन के एडिशन प्रोडक्ट ये भी क्या होता है, एनालिटिक होता है. सम एंड प्रोडक्ट आर आल्सो एनालिटिक. ठीक है, आल्सो देयर डिवीजन, ठीक है, इज एनालिटिक प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. ये सम सब्ट्रैक्शन ये इसमें ही कवर होता है. ठीक है, सम एंड सब्ट्रैक्शन आर द सिमिलर, फंक्शन में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता वो. ओके, so if two functions are analytic, then their addition, subtraction, product, everything is analytic. But for the division, the condition is what, that denominator is non-zero. ठीक है, for all z, that denominator is non-zero for all z. ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट स्टिल रिमेंबर दिस रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट इज, अभी ये आपको याद रखना है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब आपको पता है x³ + 2x², ऐसे every polynomial function is an analytic function. Every polynomial function is an analytic function. तो ये आपको पहले याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, हाँ, अभी आपको मैंने f डैश ऑफ z का एक फॉर्मूला आपको मैंने दिया था, सॉरी देना था आपको ये फॉर्मूला. ठीक है, सो as we know that f of z is equal to u plus iv. If this function is analytic, then their derivative, okay, f dash of z, which is equal to, so these are the 3 different formulas that you need to remember, correct. One is ux plus I times vx, this is the derivative of f dash of z. ठीक है, f of z का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या आता है, ux plus I times vx, this is the derivative.
Okay, but as this function is analytic, as your f of z is analytic, so it satisfies CR equation. Means what? ux is equal to vy and uy is equal to माइनस vx. तो अगर आप इनका यूज करते हो, ओके, तो फर्स्ट में मैंने क्या किया है, दोनों टर्म में मैंने u एडजस्ट किया है. तो फर्स्ट टर्म ux और सेकंड में vx को रिप्लेस किया है बाय माइनस uy से. सो यू विल गेट वन मोर वैल्यू. इसका यूज कैसे है आपको मैं बोलता हूँ आगे. ठीक है. ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट दिस होल टर्म इन टर्म्स ऑफ y, सॉरी इन टर्म्स ऑफ v. ये पूरा टर्म आपको v, आप इसको v में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? ux को रिप्लेस करो vy से. ठीक है. सो दिस थ्री आर द फॉर्मूलेज फॉर एफ डैश ऑफ जेड. ये जो सेकंड एंड थर्ड मैंने कहा से कैलकुलेट किया है, जस्ट फ्रॉम द CR इक्वेशन. आपको पोलर पे इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये मैंने मतलब बुक से नहीं लिया है ये फॉर्मूला. तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इस पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट स्टिल सिमिलर पैटर्न में मैंने आपको ये रिजल्ट दे के रखा है यहाँ पे. ठीक है. या एटलीस्ट आप ये याद रखो कि एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, या अगर आपका फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, यू एक्स प्लस आई वी एक्स. पोलर में ये होता है कार्टेशियन में. पोलर में इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू माइनस आई थीटा. इसके पीछे एक प्रूफ है, ई रेस टू माइनस आई थीटा इन ब्रैकेट यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर. देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद ही रखने या प्रिपेयर करने. ओके, क्योंकि इनका प्रूफ इतने ट्रिवियल, दिस प्रूफ्स आर नॉट ट्रिवियल. आपको डायरेक्टली इनका यूज दिस यू हैव टू ट्रीट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. ठीक है. ओके, सो ई रेस टू माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर. इसके आगे के जो दो फॉर्मूलेज है, आप देखो, एक में मैंने यू को रखा है और एक में मैंने वी को रखा है. दिस यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम द CR इक्वेशंस. दिस यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम द CR इक्वेशन. यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स. और पोलर में क्या है, आर यू आर इज इक्वल टू वी थीटा एंड आर वी आर इज इक्वल टू माइनस यू थीटा. ओके, तो आप पुट करो, पहले इसमें वी आर की वैल्यू पुट करो, सेकंड इसमें यू आर की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट दिस रिजल्ट्स. ठीक है. बट ये दो चीज़ें आप याद रखो कि एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला कार्टेशियन में क्या आता है और पोलर में क्या आता है. आई थिंक इसके ऊपर आपको इमीडिएट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने देखा था अभी. अब देखो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई प्लस आई इन ब्रैकेट वी इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई इज एनालिटिक, है ना. ये एनालिटिक है आपका फंक्शन है. तो एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक्स एंड वाई का फंक्शन है. तो एक्स एंड वाई में एफ डैश ऑफ जेड इन जनरल क्या होता है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स. अभी आप सारे ऑप्शन चेक करो. सारे ऑप्शन में एक तो आपके पास टोटल ओके यू एंड वी का एक ही ऑप्शन है कि जो मैच नहीं कर रहा है, विच इज रॉन्ग. ओके, बाकी सारे ऑप्शन में एक तो यू आ रहा है या एक तो वी आ रहा है. तो आप इसको पहले यू में कन्वर्ट करो. यू में कन्वर्ट करने के लिए यू एक्स को वैसे ही रखो एंड वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी एक्स की वैल्यू आई थिंक ये कुछ तो वी एक्स इज माइनस यू वाई ना. सो इट एक तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यू एक्स माइनस आई यू वाई, यू एक्स माइनस आई यू वाई. तो ये मैच नहीं कर रहा है. या तो अदर वे क्या है, वी अदर वे क्या है, टोटली वी में कन्वर्ट करो. कैसे, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू एक्स इज वी वाई प्लस आई टाइम्स वी एक्स. तो अभी आई थिंक ये मैच कर रहा है, वी एक्स प्लस आई टाइम्स. नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है. आई थिंक कुछ तो मिस्टेक है इसमें. ये ऑप्शंस, दिस ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. ठीक है, मैंने कुछ ये क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, बट दिस आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज. ठीक है, आपके पास एक करेक्टेड रिजल्ट है, सो डोंट वरी, दिस आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज. इनमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन वहाँ पे चाहिए था. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये यही ऑप्शन है, ये माइनस साइन नहीं है. सो यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स, दिस इज योर फाइनल ऑप्शन. ठीक है, यू कैन पिक दिस डायरेक्टली. ओके, एनी डाउट इन दिस पार्ट? यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो. डाउट है तो बोलो. जो पार्ट नहीं समझ में फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. इज दिस क्लियर? ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था एफ डैश ऑफ जेड का पार्ट. हाँ, इसमें बस दो ही फॉर्मूलेज है. ओके, इसमें क्या है, एफ डैश ऑफ जेड का कार्टेशियन का फॉर्मूला क्या है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स. एंड पोलर का फॉर्मूला क्या है, ई रेज़ टू माइनस आई थीटा यू आर प्लस आई टाइम्स वी आर. ठीक है, इसके आगे अगर ऑप्शन आपको आ भी जाता है एग्जाम में, तो वहां पे CR इक्वेशन का उन्होंने यूज किया होगा. तो आप वो उससे थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करो. राइट डाउन CR इक्वेशन फर्स्ट, फिर चेक करो कि उन्होंने ux की वैल्यू पुट की है या vx की वैल्यू पुट की है.
सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने यू आर की वैल्यू पुट की है या वी आर की वैल्यू पुट की है, ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिंगुलर पॉइंट। ओके, द पॉइंट z equal to 1 where the function f of z is just to be analytic, it's called a singular point. Means a point where function is not analytic. Simply it is a point where function is not analytic, that is called a singular point. Okay. You can say, you can check this 1 upon z, तो z equal to 0 पे यह फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। सो 1 upon z हैज अ सिंगुलर पॉइंट एट z equal to 0, ठीक है। या सिंपली आप याद रखो, मैं आपको आगे रिजल्ट देने वाला हूँ। आप अगर कोई भी एक फंक्शन लेते हो f of z अपॉन g of z के फॉर्म में, to take any random function in the form of, this is the rational function, this is called as rational function। इसके लिए आपको डायरेक्ट रिजल्ट देता हूं, ठीक है। दिस फंक्शन इज एनालिटिक, आपको मैंने यार ऊपर एक्सप्लेन भी किया है। दिस फंक्शन इज एनालिटिक ओनली व्हेन योर g ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जहां पे g ऑफ z आपका 0 होता है, एट दैट पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो आपको बस ये देखना है कि जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दोज आर दी पॉइंट्स वेयर अवर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। जहां पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, दोज आर दी पॉइंट्स वेयर अवर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, देयरफॉर दिस इज द सिंगुलर पॉइंट। पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, इट्स कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ वन अपॉन पॉइंट्स ऑफ f ऑफ z इक्वल टू 1 बाय z, द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ f ऑफ z इक्वल टू 1 बाय z। 4 ऑप्शन में 4 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको टिक करना है z इक्वल टू 0 पे ही। z इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट, इज द ओनली सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1 अपॉन z, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1? What are the singular points of 1 upon z square plus 1? बोलो। 1 upon z square plus 1 के सिंगुलर पॉइंट्स क्या है? या टेल मी अ पॉइंट्स वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। बोलो। प्लस और माइनस आई। जेड स्क्वायर प्लस 1 कौन से वैल्यूज के लिए 0 होता है? राइट नाउ अभी आप रियल में नहीं हो, आप कॉम्प्लेक्स में हो। जेड स्क्वायर प्लस 1 कौन से वैल्यू की, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है? जेड प्लस आई, दिस कैन बी रिटन एज जेड प्लस आई, जेड माइनस आई। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कैल्सियम में डालो, कैल्सियम में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या है? प्लस और माइनस आई। ये आपने किया है यूनिट 1 में। तो इसके रूट्स क्या है? प्लस और माइनस आई। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू प्लस और माइनस आई। ओके, लेट मी इरेज दिस थिंग। आपको, आपके पास ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है तो ये इस टॉपिक आपको ऐसे प्रिपेयर करना होगा। नाउ एंटायर फंक्शन, ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट्स अ फंक्शन वेयर फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर। बस एक सिंगल वर्डिंग में याद रखो, अगर कहीं पे ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो फंक्शन सारे, अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट फॉर ऑल पॉइंट्स, इफ दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक वी आल्सो कॉल इट एज एंटायर फंक्शन। वर्ड से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। It is a function which is analytic at every point. Next is harmonic function. Standard definition, standard result. Okay, harmonic function. A function phi of xy is said to be harmonic if it is continuous. ये जो ऑलमोस्ट सारे इसमें आने वाला है, कुछ ज्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। If it is continuous and has first and second order partial derivatives which satisfies this. ठीक है, तो कोई भी गिवन फंक्शन या एनी गिवन फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई, हाउ यू चेक वेदर इट इज हार्मोनिक और नॉट। आप ये कैसे चेक करोगे कि वो हार्मोनिक आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको क्या करना है, फाई को 2 बार एक्स से डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली फाई को आपको 2 बार वाई से डिफरेंशिएट करना है। अगर उन दोनों के एडिशन 0 आती है देन वी कॉल दैट फंक्शन टू बी हार्मोनिक। दैट फंक्शन फाई इज हार्मोनिक, ठीक है। अभी आप इसमें देखो, इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, इफ दैट फंक्शन इज एनालिटिक, अगर वो फंक्शन आपका एनालिटिक आता है तो ये दोनों रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर एक्चुअली हार्मोनिक। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड विथ हार्मोनिक फंक्शन। एक्चुअली हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या है?
differentiate 2 times with respect to x plus differentiate 2 times with respect to y, if that value is 0, then it become harmonic. But if your function f of z equal to u plus iv is analytic, then both real part and imaginary part are harmonic. अभी इसका यूज इनके ऊपर भी कहीं पर ना कहीं पे कोई क्वेश्चन वहां पे होगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है। ओके, सो हार्मोनिक फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइज फाई का 2 times with respect to x, 2 times with respect to y is 0, so ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस यूनिट का क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, 8 अ कंडीशन अंडर विच दिस फंक्शन इज हार्मोनिक। ओके, कंडीशन मतलब ए बी सी, इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो कंडीशन आ जाएगी सो दैट दैट फंक्शन बिकम हार्मोनिक। बट उन्होंने क्या दिया है, रेडीमेड आपके पास यू एक्स एक्स की वैल्यू है, रेडीमेड आपके पास वी यू वाई वाई की वैल्यू है। आपको हार्मोनिक की डेफिनेशन पता है, इन दोनों की एडिशन क्या आती है, 0 मीन्स व्हाट, 6ax प्लस 2by uxx प्लस uyy दैट इज 2cx प्लस 6dy इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हो, मतलब सिंप्लीफाई करना मतलब x के टर्म कलेक्ट करो, y के टर्म्स कलेक्ट करो। So this can be written as 6a plus 2c times x plus क्या है नेक्स्ट, 2b प्लस क्या रहेगा, हाँ y 6 है ना ये, हाँ 6 y is equal to 0। बोलो what is, which option is correct, which option is correct? हाँ, so that implies this number must be 0, this number must be 0, मतलब 6a plus 2c is 0 and 2b plus 6d ना, d रह गया यहाँ पे, d इक्वल टू 0, ठीक है। तो हार्मोनिक पे भी आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस फॉर्म के आते हैं आपको, और आपको ये कैलकुलेट भी नहीं करना है, रेडीमेड गिवन होगा, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया है, तो अब अगर ज़्यादा कुछ नहीं फोकस करोगे तो भी ठीक है, ठीक है, कुछ ज़्यादा आपका उसमें लॉस होगा नहीं, बट एट इज ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, इट डिपेंड ऑन यू, क्योंकि अभी वहाँ पे एमसीक्यू डायरेक्टली नहीं है, बट स्टिल वी कांट डायरेक्टली स्किप दिस टॉपिक्स। ओके, मैं अपनी ओर से 100% देके एक्सप्लेन करता हूँ, इट डिपेंड ऑन यू, कि क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होने के चांसेस नहीं है, बट अगर सारी चीज़ें आपको रेडीमेड गिवन है, आपको बस आगे का कैलकुलेशन करना है, इससे अगर कुछ आ जाता है तो इस पे भी क्वेश्चन सेट हो सकता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज मिलनेस थॉमसन मेथड, पहले तो वो समझ में आना चाहिए कि मेथड बेसिकली क्या है, ठीक है। इस मेथड से आप क्या करते हो, अगर आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू है, अगर मैं ऐसे देता हूं कुछ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आ रही है। Why? Because this is my u, this is my real part, this is my imaginary part. But मुझे क्या करना है, ओके मुझे क्या पता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो ये रिलेशन यूज करके मुझे इस इक्वेशन को मुझे इन टर्म्स ऑफ z लिखना है, मुझे इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ z लिखना है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू है बट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आ रही है, या आप ये भी ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा आ रही है, बट आपको उसको z में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स व्हाट, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z, so that you can calculate using Milnes-Thomson method. I hope it is clear to everyone now. समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? आपके पास f of z की वैल्यू है, f of z क्या होता है, u of x y plus i times v of x y, ठीक है, and you have to convert this f of z in terms of z. For example, मैं आपको एक दिखाता हूं डायरेक्टली, f of z is equal to just give me 1 minute, थोड़ा मुझे एडजस्ट करने दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम आई एक्स वाई। आपको सोच के बोलना है, ये मेरे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू है, बट वो एक्स एंड वाई में, कैन एनीवन टेल मी दिस एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, इसको आप जेड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, एनीवन? तो आपको इसका यूज समझ में आएगा, बोलो, हाउ यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड, कैन यू गेस क्या है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स जस्ट अ जेड स्क्वायर।
क्योंकि आपको पता है कि जेड इन जनरल जेड इज एक्स प्लस आई वाई। आप उसका स्क्वायर करो, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर करो, क्या आता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, मतलब 2i एक्स वाई। बट आपको एक रिजल्ट पता है कॉम्प्लेक्स में कि आई स्क्वायर हमेशा -1 होता है, तो ये क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आई एक्स वाई, वही मैंने लिखा है। तो आपको पता चल गया कि एफ ऑफ जेड को आप एक्स एंड वाई में भी लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड को आप जेड में भी लिख सकते हो। बट जेड में जब आप ट्राई कर रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था कि इट टेक सम टाइम, डायरेक्टली यू कैनॉट कन्वर्ट दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ जेड, तो उसके लिए आपके पास मिलनेस थॉमसन मेथड है। अभी आप देखो आप कितने क्विकली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट क्या है, जस्ट पुट एक्स इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो देखने में आपको कितना ट्रिवियल लग रहा है, जस्ट पुट एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, एक्स की जगह पे जेड, वाई 0 0 होगा, वाई 0 0 होगा, हो गया। सो विद इन वन लाइन यू कैन फाइंड दैट करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, व्हाट इज योर करस्पॉन्डिंग जेड फंक्शन, इट इज अगेन जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस सी भी आप ले सकते हो। ठीक है, या इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा अलग एग्जाम्पल दिखाई देगा। आई टाइम्स एक्स, ठीक है, सो व्हाट इज दिस, तो आपका इसके करस्पॉन्डिंग जेड का फंक्शन क्या होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज अ जेड स्क्वायर प्लस आई टाइम्स एक्स की जगह पे जेड पुट करना है। सो करस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑफ जेड इज दिस। तो ये रिजल्ट आप याद रखो, व्हेन यू कन्वर्ट एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, जस्ट पुट एक्स इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू 0, आपको फंक्शन जेड में मिल जाएगा। पोलर में भी वही है, पोलर में भी क्या करना है, आर की जगह पे जेड रख दो, थीटा की जगह पे 0 रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब ऐसे जैसा भी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ दिस एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, 4 ऑप्शन रहेंगे नीचे। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, आपको बस करना है क्या, एक्स की जगह पे जेड रख दो, वाई की जगह पे 0 रख दो, हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मेथड टू फाइंड दैट एनालिटिक फंक्शन। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था, ये थ्योरी में है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब आपको u प्लस आई वी फंक्शन कैलकुलेट करना है विच इज एनालिटिक। ओके, बट आपको क्या गिवन है, इन दोनों में से एक वैल्यू आपके पास है, इन दोनों में से आपके पास एक ही वैल्यू है। ओके, तो इसलिए मैंने फर्स्ट केस क्या किया, इफ u इज गिवन, अगर आपके पास u आता है तो क्या करना है, अगर आपके पास v आता है तो क्या करना है। ठीक है, तो मेथड क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझे एक्सप्लेन ही करना है ना, फॉर एग्जाम्पल फाइंड एनालिटिक फंक्शन वेयर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सो फाइंड अ v, आपको v कैलकुलेट करना है, सो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी बिकम एनालिटिक। ये आपका एट देन एनालिटिक आना चाहिए, तो ऐसा आपको v कैलकुलेट करना है। ओके, इस टाइप की इक्वेशन है, मतलब u प्लस आई वी में से एक वैल्यू आपको गिवन होती है, आपको अदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज वन अप्रोच। या सिंपली आप क्या करो, आप डायरेक्टली एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, या आपको एफ ऑफ जेड, इसमें भी दो पार्ट है, मतलब एक केस में v कैलकुलेट करके आप एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करते हो, और एक ऐसे केस है विदाउट कैलकुलेटिंग v, आपके पास वो डायरेक्टली एफ ऑफ जेड आता है। सी, बट दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज फार एज एमसीक्यू इज कंसर्न। ठीक है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा उनमें डिटेल में नहीं जाने वाला, इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर वेस्ट किए थे जब ये रेगुलर चल रहा था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, विल फोकस ऑन ओनली वन मेथड, एक ही मेथड पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो सेकंड मेथड है अभी के लिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ, इट इज देयर इन अ पीडीएफ, इफ यू वांट यू कैन रेफर। ओके, मैं अभी इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोज जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू मेक एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो मेथड पहले मतलब 10th मेथड ही में लेने वाला, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक मेथड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी कैलकुलेट करना है कि जो एनालिटिक है, बट आपके पास एक तो u गिवन होगा या तो आपके पास v गिवन होगा। क्वेश्चन आप पहले समझ लो कि क्या करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स वी, आपके पास u गिवन है, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है, पूरा एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ जेड, मेथड ऑफ फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड। तो मेथड क्या, आप देखो, पहले आप क्या करो, एफ डैश ऑफ जेड लिखो। एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स। ये सारा कार्टेशियन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे रिमार्क दिया है, सेम चीज आप पोलर में भी कर सकते हो, बट ज्यादातर आपको कार्टेशियन के आएंगे।
तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स, ठीक है। अभी आपके पास u गिवन है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे रिजल्ट को u में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए vx की वैल्यू बाय CR इक्वेशन आई विल रिप्लेस vx बाय माइनस यू वाई। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? ओके, आप मुझे बोलो जब जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोलो, क्योंकि मैं विदाउट एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप बोलो जहां पे नहीं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एफ ऑफ जेड मतलब एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, बट आपको u एंड v में से एक ही वैल्यू आपके पास है, ठीक है। सपोज आपके पास u है, तो आपको एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला पता ही है, विच इज यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स। ओके, एज वी नो द वैल्यू ऑफ u, सो आई विल कन्वर्ट दिस होल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u ओनली, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई रिप्लेस vx बाय माइनस यू वाई। नेक्स्ट स्टेप आप देखो क्या करना है। अभी आप u गिवन है तो आप ux कैलकुलेट कर सकते हो, u गिवन है तो आप uy भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, एफ डैश ऑफ जेड को जेड में कन्वर्ट करो। कैसे? मिलनेस थॉमसन मेथड, जस्ट पुट x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ यू विल गेट एफ डैश ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। कुछ तो एक जेड में वैल्यू मिल जाएगी, बट आपको कैलकुलेट क्या करना था, एफ ऑफ जेड। तो जस्ट टेक द इंटीग्रेशन, उसको फिर से इंटीग्रेट करो। जब आप इंटीग्रेट करते हो तो सी ऐड करना होगा। टेक द इंटीग्रेशन, दैट विल बी योर एफ ऑफ जेड। ट्रिवियल मेथड है। इफ यू वांट यू कैन रेफर द एग्जांपल्स फ्रॉम दैट पीडीएफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल है, आपको उतने लेंदे नहीं आने वाले, सिंपल केसेस में आपको आ सकते हैं। ओके, करना है क्या किसी एक केस में कैलकुलेट, क्योंकि एमसीक्यूज तो नहीं है, या पता नहीं मुझे आगे है कि नहीं, शायद नहीं है, ठीक है। बट आपको आने वाले हैं सिंपल केसेस में, मतलब अगर मैं होता तो मैं 100% एडजस्ट करता, ठीक है। सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन होगा। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको मैंने क्या बोला है, आपको पहले क्या करना है, स्टेप 1 में राइट डाउन एफ डैश ऑफ जेड। ये क्या होता है, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स, बट आपके पास u की वैल्यू है, इसलिए मैं वी एक्स को भी u में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो दैट इज माइनस आई टाइम्स यू वाई। अभी 1 बाय 1 वैल्यू रख दो। यू एक्स मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आता है 2x, माइनस आई u का विद रिस्पेक्ट टू y आता है 2y। ये हो गया एफ डैश ऑफ जेड। ओके, ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ जेड। दिस इज योर स्टेप 1। अभी स्टेप 2 में इसको मुझे z में कन्वर्ट करना है। कैसे? पुट x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, 2z, है ना। y 0 हो गया, बट मुझे चाहिए एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2z, जेड स्क्वायर। और आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी मैंने ऊपर लिया था, ठीक है। एक लिखा था ना मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आई एक्स वाई, ये बेसिकली जेड स्क्वायर ही था, ठीक है। प्लस सी से, ठीक है, ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज दिस आर दी देयर आर डिफरेंटली मेनी एनालिटिक फंक्शन विच सैटिस्फाइज दिस, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। देखो कितनी ट्रिवियल मेथड है। तो ये 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आने के चांसेस है, 100% है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेवल मैच होती है। सेम वी का रीजन है, अगर वी गिवन है तो इसको टोटल पार्ट को वी में कन्वर्ट करो, मिलनेस थॉमसन मेथड से जेड में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेट करो, यू विल गेट दैट फंक्शन, ठीक है। सो जस्ट प्रिपेयर दिस मेथड। ये मेथड आप सिंपल फंक्शन के लिए प्रिपेयर करो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, आप एक्स लेके प्रिपेयर करो, एक्स स्क्वायर लेके प्रिपेयर करो, ओके। ऐसे सिंपल केसेस में आप प्रिपेयर करो, सो दैट यू कैन स्किप दिस मेथड। ये आप स्किप कर सकते हो, तो मैं नहीं ले रहा, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इस पे भी कुछ ज्यादा नहीं आने वाले, सो जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन। द लैप्लास ऑपरेटर, that is nothing but del square, dabba square by dabba x square plus dabba square by dabba y square, sorry this is a mistake, is called a Laplacian operator and again it is a y square। सब में ये y रह गया, एक बार कॉपी पेस्ट किया तो वही रह गया, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज अ Laplacian operator and del square phi is actually dabba square phi upon dabba x square plus dabba square phi upon dabba y square। थोड़ा बहुत आपने वेक्टर में देखा होगा, दिस इज कॉल्ड एज Laplacian operator। आपको सिलेबस में ये रिजल्ट है ना। ये जो लैप्लासियन ऑपरेटर है ना, इसको आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था, ओके। सो दैट प्रूफ इज आल्सो देयर। अभी यहाँ पे मैंने जंप किया डायरेक्टली, बट दैट प्रूफ इज आल्सो देयर। सो डेल स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या आती है, आप उतना याद रखो, ये आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है।
So that value is 4 into del square upon dabba z into dabba z bar. Z bar मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ये क्या होता है? x माइनस आई वाई वेन माई z इज x प्लस आई वाई. ठीक है. सो इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक. कुछ ज्यादा इन डिटेल में प्रिपेयर नहीं करना है. जस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ दिस डेल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल z इंटू डेल z बार. और कुछ रिजल्ट है जो आपको थ्योरी एग्जाम के लिए चाहिए थे. z बार होता है मॉड z स्क्वायर, है ना. z इंटू z बार हमेशा होता है मॉड z स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप इसको f ऑफ z से रिप्लेस करते हो तो f ऑफ z इंटू f ऑफ z बार भी क्या होगा? मॉड f ऑफ z होल स्क्वायर. ठीक है. ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिजल्ट्स मैंने दिए यहाँ पे. बट MCQ के लिए यू कैन हार्डली प्रिपेयर दिस वन वैल्यू. ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स में डेल स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता. ठीक है. ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. नाउ नेक्स्ट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इस पे भी बोलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आने वाले. लास्ट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, कॉची लीनियर एंड कॉची इंटीग्रल. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ये आपका फंक्शन होता है. बट यहाँ पे वो फंक्शन आपको कैसे लेना है? a प्लस बी जेड अपॉन सी प्लस डी जेड. दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो रिमेंबर एफ ऑफ जेड इक्वल टू w इक्वल टू a प्लस बी जेड अपॉन सी प्लस डी जेड. ठीक है. अगर आप एफ ऑफ जेड को ऐसे डिफाइन करते हो दैट इज नथिंग बट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली. बट हियर there is one condition is there. That condition is what? AD minus BC is not equal to 0. It is actually ABCD. So this determinant not equal to 0. Just give me 1 minute. Okay, so we'll continue. So this function f of z equal to a plus bz upon c plus dz it is called as bilinear transformation. But here one more condition is there, that AD minus BC is not equal to 0. Okay. And this bilinear transformation actually a combination of these three more transformation. Okay, again you have to prepare this for MCQ point of view, है ना. So translation या simply scaling by h. ठीक है. Rotation and magnification. So w equal to z plus h. This is called as translation. Rotation and magnification, that is w equal to cz. इन्वर्जन दैट इज w इक्वल टू 1 बाय z. इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक्चुअली ये आपको फॉर्मूला मिलता है. ठीक है. तो एक स्टेटमेंट आपका आ जाता है डायरेक्टली. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन. कैसे आपको दिखाई देगा? प्लस a प्लस बी जेड है तो ये ट्रांसलेशन है. b टाइम्स z है तो ये रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन है. 1 अपॉन c प्लस डी जेड है मतलब ये इन्वर्जन है. ठीक है. तो इतना आपको याद रखना है यहां से. इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री ट्रांसफॉर्मेशन. फिर एक टॉपिक है कि क्रॉस रेशियो क्या होता है. सो दिस क्रॉस रेशियो ऑफ 4 नंबर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय एन ओपन ब्रैकेट इन विच z1, z2, z3, z4. इसको आप क्या बोलते हो? क्रॉस रेशियो बोलते हो. एंड हाउ यू डिफाइन दिस? अब इसका फॉर्मूला याद कैसे रखना है आपको एक ट्रिक देता हूं मैं. ओके, कैसे फॉर्मूला याद रखना है? सीक्वेंस से जाना है. सो स्टार्ट फ्रॉम z1. सो z1 माइनस z2 आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट नीचे का टर्म कम टू डिनोमिनेटर. z2 माइनस z3 नीचे आ गए. नेक्स्ट z3 माइनस z4 फिर से ऊपर. लास्ट में क्या है? फिर से z4 माइनस z1. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस रेशियो. ठीक है. ये जब आप कैलकुलेट करोगे दैट इज योर फाइनल वैल्यू. दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ क्रॉस रेशियो. क्रॉस रेशियो ऑफ दिस 4 नंबर. अब इसका यूज क्या होता है? मतलब व्हाई वी नीड दिस क्रॉस रेशियो? ओके, बिकॉज दिस क्रॉस रेशियो okay is similar for the binomial transformation, bilinear transformation. This cross ratio is similar for the bilinear transformation. Means what? अगर आप w इक्वल टू a प्लस बी जेड अपॉन सी प्लस डी जेड ये मैप लेते हो और इस मैप के अंदर या यूजिंग दिस मैप अगर आप 4 वैल्यूज ऑफ w, if I want to transform 4 values of w to 4 values of z, ठीक है, तो उन 4 वैल्यूज के लिए एक्चुअली क्रॉस रेशियो आपका सेम आता है. सिंपली लेफ्ट साइड में w1, w2, w3, w4 इन 4 नंबर का क्रॉस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रॉस रेशियो ऑफ z1, z2, z3, z4. वे आपका क्वेश्चन होगा कि ये z1 क्या है? z1 बेसिकली क्या होता है? सॉरी, ये w1, z1 इन दोनों में क्या रिलेशन है?
इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, व्हेन आई पुट W इक्वल टू W1, तो राइट साइड में क्या होता है, A BZ1 अपॉन C प्लस DZ1, मतलब Z1 के करस्पॉन्डिंग W1 होता है, Z2 के करस्पॉन्डिंग W2 होता है, Z3 के करस्पॉन्डिंग W4 होता है, सॉरी W3 होता है, Z4 के करस्पॉन्डिंग W4 होता है। इसमें आपके थ्रू मतलब अगर आप Z की जगह पे Z1 रखते हो तो आपको W1 मिल जाएगा, Z की जगह पे Z2 रखते हो तब आपको W2 मिल जाएगा, ऐसे, ठीक है। सो एंड फॉर दिस 4 नंबर्स योर क्रॉस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। अगेन इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। इसके ऊपर भी थ्योरेटिकली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, बाकी कुछ ज्यादा आने के चांसेस नहीं, ठीक है। सो क्रॉस रेशियो अंडर द बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम, ठीक है। दैट इज इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपके पास जो आपका जो रेगुलर जेड प्लेन है ना, उस जेड प्लेन को आप डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करते हो। कैसे, डब्ल्यू कैसे डिफाइन किया है, ए प्लस बी जेड अपॉन सी प्लस डी जेड, ओके। जस्ट बाय यूजिंग दिस मैप आप जेड प्लेन को डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करते हो। आपके ऊपर इसके ऊपर एक एमसीक्यूज भी है, तो वो मैं ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का इसमें सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैट्रिक्स का यूज करके आप वेक्टर को रोटेट करते हो ना, वैसे ये इस फंक्शन का यूज करके आप गिवन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर या एनी जेड आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। एंड दीज आर दी मेथड्स टू सॉल्व एग्जांपल्स ऑन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कुछ आने के चांसेस है, ओके। बट स्टिल मैंने ऐड किया, इफ व्हाट यू कैन रेफर दिस, बट कुछ ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, ओके। अभी इस पे क्या है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बाइलिनियर पे कुछ ज्यादा नहीं था। नाउ 20, ओके, आगे अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D ऑलवेज ट्रांसफॉर्म सर्कल्स टू सर्कल ही होता है ये D टू सर्कल। अभी इसका प्रूफ इतना ट्रिवियल नहीं है, आई डोंट नो कि ये उन्होंने क्यों ऐड किया है, बट आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके याद रखो। दैट प्रूफ इज नॉट ट्रिवियल एंड आई थिंक इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस आल्सो, ये आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, अगर है तो आप इतना बस याद रखो दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म। आपको मतलब सिंपल केसेस में आप अगर एग्जांपल देखते हो ना, जो मैंने पीडीएफ में लिए थे, सिंपल केसेस में आपको आता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट इट इज अ इन जनरल स्टेटमेंट दैट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म सर्कल्स इनटू सर्कल, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना चाहिए, बट है तो मैंने बोल दिया। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जो 21 में बाइलिनियर के ऊपर। एक मैप गिवन है W इक्वल टू 1/z, दिस इज योर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आएगा A की वैल्यू 0 है, B इक्वल टू 1 है, C की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 0 है। बस AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D से कंपेयर करो। तो ऊपर 1 चाहिए तो B इक्वल टू 1 होगा, नीचे Z चाहिए तो C इक्वल टू 1 होगा, D 0 होगा। आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, हाँ, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ स्ट्रेट लाइन, ओके। बट उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, अभी आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे सर्कल है, ओके। यहाँ पे और कंडीशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो कैन स्किप दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको सिलेबस में सूट करता है। सो राइट नाउ यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर सम मोर कंडीशंस, मतलब AD माइनस BC नॉन जीरो तो आना ही चाहिए, बट सम मोर कंडीशंस आल्सो देयर। तो पता नहीं, अभी मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ इफ इट इज देयर इन द बुक और नॉट, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको ये होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको है, एक मैप गिवन होता है, आपको इस सर्कल को ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपका क्वेश्चन है। आपका अप्रोच क्या होता है, मतलब आपको इन जनरल थियोरेटिकल अप्रोच भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप क्या करते हो, W की वैल्यू क्या होती है, U प्लस IV, ठीक है। 1 अपॉन Z की वैल्यू क्या आती है, x प्लस IY। आपको क्या करना है, सर्कल को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब ये x एंड y का इक्वेशन है, इसको आपको U एंड V में कन्वर्ट करना है। आप देखो मैथमेटिकल इक्वेशन को कैसे देखना है, ये x एंड y का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन या जो भी है वो बाद में देखा जाएगा कि वो क्या आता है, बट आपको ये x एंड y का इक्वेशन है, इसको आपको U एंड V में कन्वर्ट करना है, ओके। अगर यहाँ पे U एंड V का इक्वेशन आता है आपको, तो आपको x एंड y में कन्वर्ट करना है। यही तो पॉसिबिलिटी है ना, U एंड V को x एंड y में, x एंड y को U एंड V में, इतना ही तो आपको करना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या समझ में आ रहा है कि मुझे x एंड y को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, U एंड V में कन्वर्ट करना है, क्योंकि x एंड y का गिवन है, ओके। तो आपको क्या करना होगा,
इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करो, टेक द इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो दैट इंप्लाइज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस आई वी। अभी इसको आपको पता है कि 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। just multiply this by conjugate, so you will get u minus iv in numerator upon a plus b। हाँ, ये आप कॉम्प्लेक्स में आप याद रखो, a प्लस आई बी a माइनस आई बी, कॉम्प्लेक्स में ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस बिकम u स्क्वायर। कैसे आप ये मल्टीप्लाई करके देखो, a स्क्वायर माइनस ए आई बी प्लस ए आई बी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आई बी माइनस आई बी, इन दोनों का प्रोडक्ट वो आता है माइनस, बट आई स्क्वायर -1 होता है, सो दैट बिकम प्लस। अब क्रॉस वेरीफाई करो, सो लेफ्ट साइड में क्या है, x प्लस आई वाई। तो अगर आप रियल पार्ट कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, u अपॉन दिस, रियल के साथ रियल, एंड y की वैल्यू क्या आती है v अपॉन दिस। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है शायद, u अपॉन दिस एंड दिस बिकम v अपॉन दिस। ठीक है, तो ये रेडीमेड गिवन है, या आपको नहीं करना है, ये रेडीमेड गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, आपको बस x एंड y इस इक्वेशन में पुट करना है, दैट इज योर फाइनल आंसर। आपको बस x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। बोलो किसने किया है, कि क्या आता है आंसर इसका, इरेज नहीं हो रहा है। हाँ, पुट करो। पहले क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, ओके, ये 6x को बाहर लेता हूं मैं, तो 6x की वैल्यू क्या है, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अभी सारे टर्म्स में से मैं क्या करता हूँ, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रेस टू 2 इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट साइड में मुझे क्या मिलेगा 6u, और ये क्योंकि मैंने स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नाउ दिस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कैंसिल विद दिस, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 6u, मतलब क्या है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 माइनस 6u टू 0। ठीक है, तो ये बाइलिनियर के क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रिवियल है। आपको जिस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है ना, मतलब एक्स एंड वाई का आता है तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू वहां पे पुट करनी है। अगर आपको यू एंड वी का ट्रांसफॉर्म करना है तो यू एंड वी की वैल्यू वहां पे पुट करनी है, एंड दैट वैल्यूज आर ऑलरेडी देयर इन योर एमसीक्यू। वो एक्चुअली डिफिकल्ट था, अगर आप थ्योरी से कंपेयर करते हो ना, वो एक्चुअली डिफिकल्ट है। जो मैंने यहाँ पे आपको नीचे कैलकुलेट करके दिया है ना, दिस टेक सम टाइम। ये तो ट्रिवियल है, बट दिस टेक सम टाइम। जैसे एक्स एंड वाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाता है। ओके, दैट इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको वहां पे है। ठीक है, सिंपल ही होगा। एंड नाउ द लास्ट पार्ट एंड देन विल स्टॉप। ठीक है, इसमें अभी ये कंबाइन ही लेता हूँ, बट यस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। नाउ फर्स्ट थ्योरम, सो कॉचीज थ्योरम। ये थ्योरम क्या होता है, अभी एनालिटिक का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। ओके, बट स्टिल आप याद रखो, आपको ज्यादातर सारे फंक्शन ऐसे ही आने वाले। ओके, तो आपको हाउ यू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। ओके, तो रैशनल फंक्शन के लिए रिजल्ट क्या होता है, जिस वैल्यू के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 होता है, ओके, एट दैट पॉइंट योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। या सिंपली फॉर अ रैशनल फंक्शन योर फंक्शन इज एनालिटिक ओनली व्हेन योर g ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0। एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि एनालिटिक के केस में क्या होता है, योर डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपको इसी फॉर्म के क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आप इससे ही कंपेयर करो। ओके, नाउ द फर्स्ट थ्योरम, इफ योर f of z is analytic function and f dash of z is continuous at each point within and on a simple closed curve। अभी ये कर्व ज्यादातर केस में सर्कल है, आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल में। ठीक है, मतलब क्या दिया है उन्होंने कि आपके पास एक फंक्शन है जो उस कर्व के अंदर वेयर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और दैट फंक्शन इज एनालिटिक, ओके, इनसाइड दैट कर्व also on the boundary of the curve. Okay, if a function f of z is analytic inside the curve C, also on the boundary of curve C,
तो उस केस में उसका इंटीग्रल 0 आता है, बट प्रोवाइडेड दैट कर्व मस्ट बी क्लोज। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, अभी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बोलता हूं। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, सेम कंडीशन कैरी फॉरवर्ड करो। आपके पास एक फंक्शन है कि जो एनालिटिक है ऑन एंड विद इन अ क्लोज कंटूर सी, ओके, बट आपको मतलब जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है, कर्व के अंदर कर्व के ऊपर सारे पॉइंट्स के लिए एनालिटिक, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बट आपको वहां से एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एफ ऑफ जेड से एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है विच इज नॉट एनालिटिक एट अ सिंगल पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ ऑफ जेड तो आपको एनालिटिक है, नो प्रॉब्लम, बट उसका यूज करके मैं एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं, अगर मैंने नीचे जेड माइनस ए रख दिया, ओके, अब इस पूरे फंक्शन के लिए मुझे बोलो वेदर दिस होल फंक्शन इज एनालिटिक। अगर वो ए पॉइंट मैं कर्व के अंदर लेता हूं, सो वेदर माय फंक्शन इज एनालिटिक नाउ, अभी ये फंक्शन एनालिटिक होगा क्या? नो कौन से पॉइंट के लिए एनालिटिक नहीं आ रहा है, एट विच पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, एट जेड जेड इक्वल टू ए। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, आपके पास एक फंक्शन है तो आपको देखते समय इस पूरे फंक्शन को देखना है। सो नाउ वी हैव अ फंक्शन विच इज नॉट एनालिटिक एट अ सिंगल पॉइंट, which is not analytic at a single point, then you can use Cauchy integral formula। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो फिर नीचे आना है, रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, अभी इतना तो डिफरेंस आपको पहले याद रखना है, एक ही पॉइंट है इसलिए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला क्या है, सिंपली इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब न्यूमरेटर में क्या करो, इन न्यूमरेटर जस्ट रिप्लेस जेड बाय ए, ये हो गया आपका कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये जेड माइनस ए की पावर अगर मैं कुछ ले लेता हूं, तो n प्लस 1 पावर अगर मैं ले लेता तो क्या होगा, तो उस केस में भी रिजल्ट है, दैट फॉर्मूला इज 2 अपॉन n फैक्टोरियल, बट यहाँ पे fn आता है, मतलब अगर आपकी पावर 4 है तो आपको यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लेना है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस न्यूमरेटर एट a। अगर पावर 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब n प्लस 1 है तो 1 नंबर लेस टाइम्स यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर फंक्शन को, देन पुट एक्स जेड इक्वल टू ए। इज दिस क्लियर और नॉट, पहले उतना बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट, क्या मैंने बोला उतना तो समझ में आ रहा है, क्या क्या? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? हाँ, एफ ऑफ ए मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट मी टेक डायरेक्टली वन एग्जाम्पल, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, और मेरे पास रीजन क्या है, एक मैं सर्कल दे देता हूं, ओके, सेंटर एट 0 0, रेडियस 1 है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेडियस से 2 ले लो, लेट अस टेक रेडियस 2। आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी ये जो पूरा फंक्शन है, दिस होल फंक्शन, वेदर दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस सर्कल, पहला क्वेश्चन, ये फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक है क्या? एनालिटिक का मीनिंग क्या होता है, योर डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। तो इस सर्कल में ये फंक्शन आपका एनालिटिक है क्या, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इट इज नॉट एनालिटिक, क्योंकि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1, ये पॉइंट आपका सर्कल के अंदर आ रहा है, अगर वो सर्कल के अंदर है तो वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि आपको उस सर्कल के अंदर ही चेक करना है, सारी चीज आपको सर्कल के अंदर ही चेक करनी है, तो बाहर का कुछ रिलेशन है ही नहीं। ओके, सो राइट नाउ इट इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है, इट इज जस्ट इक्वल टू 2 ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन था कि एफ ऑफ ए क्या होता है, अभी आपका एफ ऑफ जेड क्या है, न्यूमरेटर का फंक्शन क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या करना है, दिस इज माई एफ ऑफ जेड, इसमें क्या करना है, जेड इक्वल टू ए रखना। ए क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं आ रहा है, तो ए इक्वल टू 1, तो जस्ट पुट ए इक्वल टू 1, सॉरी जस्ट पुट 1 इन द न्यूमरेटर, जिस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट आपको न्यूमरेटर में रख देना है। सो व्हाट हैपन, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, सो योर फाइनल आंसर इज 4 पाया। इज दिस क्लियर, अभी क्लियर है? जो आपका न्यूमरेटर है उसमें, ये आपका न्यूमरेटर है, इसमें z इक्वल टू ए रख दो। ए क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ, अभी एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ओके, सेम
इसमें आपको आंसर देना है। ये था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। मैं अभी ऊपर जाता हूँ, कॉची थ्योरम पे पूछता हूँ। आपको अगर समझ में आ रहा था मुझे बोलो। सेम दे रहा हूँ मैं, जेड स्क्वायर प्लस वन जेड माइनस वन, बट मैं अभी रीजन चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको अभी रीजन क्या देने वाला हूँ, इट्स अ सर्कल जिसकी रेडियस 0.5 है, रेडियस 0.5 है एंड सर्कल का सेंटर 0 0 है। अभी मुझे आप बोलो कि ये फंक्शन सर्कल के अंदर एनालिटिक है क्या? whether this function is analytic inside the circle? Other student, I got only one answer. Okay, तो अभी वन पे एनालिटिक नहीं था, बट वन पॉइंट सर्कल के अंदर ही नहीं है ना, सो दैट वन पॉइंट इज नॉट देयर इनसाइड दिस सर्कल। जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के बाहर देखना ही नहीं है। आपको मैंने पहले क्लियर किया है, हमें सर्कल के बाहर क्या रीजन आ रहा है उस पर फोकस करना ही नहीं है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन बाउंड्री ऑफ द सर्कल और इनसाइड पार्ट। ठीक है, तो अभी ये एनालिटिक हो रहा है, इसका मतलब क्या, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरी पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द बाउंड्री। This function is analytic at every point inside the circle and on the boundary. Therefore, that integral is zero. क्योंकि ये तो कॉची थ्योरम था। अगर वो सारे पॉइंट पे एनालिटिक है तो आपका इंटीग्रल जीरो आता है। किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं आ रहा है तो ये रिजल्ट आता है। अगर उसमें z माइनस एक की कुछ पावर है तो ये थोड़ा उसका एक्सटेंशन है, बट इसका मीनिंग ये वही कि एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। सो रिमेंबर, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल पॉइंट और इट इज अ पॉइंट वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ओके, ये हो गया आपका पूरा कॉची। अभी इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर है तो इसमें जल्दी से। रेसिड्यू नहीं, ये आगे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है, ये पोल का भी आगे का पार्ट है, ये 11 12 है, उसके ऊपर के भी शायद रहेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। f of z is analytic on and within a closed curve C, then by Cauchy integral formula क्या होगा बोलो? जीरो, क्योंकि सारे पॉइंट पे एनालिटिक है तो जीरो। f of z is analytic on and within a closed contour C if a is any point inside, this is just a theorem, हाँ मैं स्किप कर देता हूँ, रेडीमेड फॉर्मूला है वो। हाँ, अब इस पे देखते हैं आपको क्या ड्रॉ करना है। मॉड z इक्वल टू 1, बोलो क्या होता है ये? मॉड z इक्वल टू 1 क्या होता है? वेरी गुड, सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। अभी देखते हैं z माइनस टू, इसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, z इक्वल टू 2 पे ही प्रॉब्लम है, बाकी पॉइंट का तो चेक करना ही नहीं है क्योंकि z इक्वल टू 2 पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। बट z इक्वल टू 2 पॉइंट सर्कल के अंदर है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या हो रहा है, दिस बिकम एनालिटिक एवरीवेयर। इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर, व्हाट इज योर इंटीग्रल? हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर से सुनो। एक ही पॉइंट पे प्रॉब्लम है, z इक्वल टू 2, बट z इक्वल टू 2 पॉइंट सर्कल के अंदर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन दिस बाउंड्री। सारे पॉइंट पे एनालिटिक आ रहा है ना वो, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक पॉइंट सर्कल के अंदर, तो उस केस में इंटीग्रल क्या होता है? जीरो। इन दैट केस योर इंटीग्रल इज जीरो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, कॉची का ही है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या, मुझे ये रीजन बोलो आप, क्या है रीजन, क्या है बोलो? ये क्या ड्रॉ करना है बोलो? व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस? 2,0 पे 2 रेडियस का, ये मतलब ऐसा कुछ तो होगा वो। हाँ ठीक है, अभी किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है? 2 पे, सर्कल के अंदर आ रहा है अभी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही पॉइंट है जहां पे प्रॉब्लम है, वो सर्कल के अंदर है, तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 2। ठीक है, दैट इज 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 2, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू एट z इक्वल टू 2। क्या है वो वैल्यू? 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4, सॉरी 5 ना, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, सो योर फाइनल आंसर इज 10 पाई आई। हो गया, कॉची समझ में आ गया क्लियरली ना? हाँ ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ पोल, पहले ये वर्ड समझ लेते क्या है पोल का मीनिंग। क्या होता है? सेम डेफिनेशन है। ओके, ऐसे पॉइंट जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 आता है, हो गया पोल। मैंने डेफिनेशन भी दी है, अ पॉइंट वेयर योर लिमिट इज इन्फिनिटी, है ना। जब आप उस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करते हो ना, इन्फिनिटी आंसर जाता है, दैट इज नथिंग बट अ पोल। जैसे कि 1/z² -1 में पोल्स क्या है? 1 and -1, दीज आर द पोल्स।
ओके, पोल ऑफ ऑर्डर का मीनिंग अभी समझ लेते हैं क्या होता है। ओके, अभी आपको पता है कि 1/z-a में z इक्वल टू ए आपका पोल है, क्योंकि z इक्वल टू ए पे ये वैल्यू 0 दे रहा है, उसकी जो पावर है दैट इज योर ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट पोल। उसकी जो पावर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट पोल। या सिंपली, अब ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आपको यहां से डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी आप देखो, मुझे पहले ये बोलो इस फंक्शन के लिए आपके पोल्स कौन से, टेल मी योर पोल्स फर्स्ट। -1 पे 0 हो रहा है, नीचे 1 पे भी 0 हो रहा है, -4 पे भी 0 हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो टर्म था, मतलब z इक्वल टू -1 टर्म इसका था, उसकी पावर चेक करनी। उसकी पावर क्या है, 3, सो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। ये रिजल्ट है एक्चुअली, दिस इज द मीनिंग ऑफ पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, अभी 1 है, तो 1 इज द पोल करस्पॉन्डिंग टू z-1, तो उसकी पावर क्या है 2, सो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। z+4 इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, एंड ऑर्डर 1 का जो पोल होता है ना दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पोल। याद रखो, ये भी है एमसीक्यू में। ऑर्डर 1 का जो पोल होता है दैट इज कॉल्ड अ सिंपल पोल, पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अभी इस पे एमसीक्यूज कर लेते हैं पहले सॉल्व। ओके, अभी टेल मी क्विकली, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी। ऑर्डर ऑफ पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, इसमें 2 ही पोल है। पोल बोलो पहले कौन से, टेल मी पोल फर्स्ट। -1 पोल के ऑर्डर क्या है, 2, एंड 2 पोल के ऑर्डर 2 इज अ सिंपल पोल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, नाउ टेल मी अबाउट 14, यू कैन टेल मी डायरेक्टली। 1 की 3 है और 2 की इज अ सिंपल पोल। ओके, हो गया। सो पोल में शायद इतना ही है। नाउ द लास्ट पार्ट इज द रेसिड्यू। नाउ द रेसिड्यू थ्योरम, या नाउ द रेसिड्यू थ्योरम। अभी आप देखो, कंडीशन पहले समझ लो क्या है। आपका फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है। अभी ये जो ऊपर का फंक्शन है उसको आप एफ ऑफ जेड बोलते हो इस पूरे टॉपिक में। नहीं सॉरी, इसमें नहीं, हाँ, कॉस रेसिड्यू में नहीं, कॉस रेसिड्यू में आप जो भी गिवन फंक्शन है इंटीग्रल के अंदर, दैट फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। मतलब क्या है कि वहां पे फाइनाइट ही चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स आ रहे हैं। या सिंपली आप बोल सकते हो, नाउ दिस आर द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, दिस आर द पॉइंट्स वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। कॉची इंटीग्रल के केस में देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। नाउ राइट नाउ वी हैव more than one points where your function is not analytic. That is the basic difference between Cauchy integral formula and Cauchy residue theorem. ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा आते हैं इसलिए आप रेसिड्यू का थ्योरम यूज करते हो। अगर एक ही आता है तो डायरेक्टली आप Cauchy इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आप कंसिडर करो कि आपके पास नाउ राइट नाउ वी हैव दिस n पोल्स, आपके पास n पोल्स है, या सिंपली यू कैन से दैट देयर आर n पॉइंट्स वेयर योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। इतना ही नहीं, आपके पास वो जो n पॉइंट्स है उनके आपके पास ऑर्डर भी है, पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m2, लाइक दैट, जैसे ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो नाउ वी हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, आल्सो वी हैव द ऑर्डर करस्पॉन्डिंग टू दैट पोल्स। तो आपका रिजल्ट क्या है, सो दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई i इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस rn। जितने पॉइंट्स है उतना काउंट आएगा। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दिस r1? So this R1 is actually a residue corresponding to Z1. R2 is what? Residue corresponding to Z2. And similarly Rn is what? Residue corresponding to Zn. तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है रेसिड्यू थ्योरम में, जो आपके पोल्स थे उस हर एक पोल के करस्पॉन्डिंग आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड उन रेसिड्यू की एडिशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई i इज योर फाइनल आंसर। एडिशन ऑफ द रेसिड्यूज मल्टीप्लाई बाय 2 पाई i इज योर फाइनल आंसर। अभी रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला थोड़ा क्रिटिकल है बट आपको याद रखना होगा। रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे Ri मतलब सेकंड रेसिड्यू, R2 R3 कोई भी एक आप एज्यूम करो। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि R1 कैलकुलेट करना है Z1 के करस्पॉन्डिंग। तो R1 का फॉर्मूला क्या है, 1/, Z1 आपका रेसिड्यू है, उसकी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस Z1? इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m1। तो क्या आएगा, वो जो ऑर्डर है -1 फैक्टोरियल, so it is a pole of order m1, so m1 minus 1 factorial, फिर एक ब्रैकेट डालना है, take the m minus 1, it has order m1,
वन नंबर लेस m1 माइनस वन, तो ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव लेना है। ओके, m माइनस वन, m माइनस वन, यम ऑर्डर का पोल है तो m माइनस वन ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे m1 ऑर्डर का पोल है, सो m1 माइनस वन टाइम्स आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, z माइनस जेड वन रेस टू यम इंटू एफ ऑफ जेड का। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ जेड आई, रैंडम ही लेता हूँ, इफ जेड आई, यहाँ पे यम आई रह गया, ये सारे यम आई चेंज कर देता हूँ। इफ जेड आई इज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम आई, ठीक है, या सिंपली मैं एक काम करता हूँ ना, इट्स बेटर टू राइट फॉर जेड वन ओनली। ठीक है, तो क्या था आपके पास अभी कि जेड वन जो है या आपका एक पोल है जिसकी ऑर्डर आपकी यम वन है, तो मुझे आर वन कैलकुलेट करना है जेड वन के करस्पॉन्डिंग। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ओके, वन अपॉन ऑर्डर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, सेम दैट ऑर्डर माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, जेड माइनस जेड वन आपको पता है पहले, रेस टू एम वन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड, मतलब जेड माइनस जेड वन रेस टू एम वन से मुझे गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद मुझे ये इस वैल्यू में जेड की जगह पे जेड वन डालना है। अब देखो थोड़ा क्रिटिकल है, बट इतने आपको डिफिकल्ट नहीं आते एग्जाम में। आप अगर एज्यूम करते हो, सपोज इफ जेड नॉट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर यम, आप एज्यूम करो कि आपके ऑर्डर वन है, तो देखो फॉर्मूला कितना सिंपल होता है। इफ वी हैव गिवन अ पोल ऑफ ऑर्डर वन, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑर्डर वन है तो यम वन वन है, सो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये डी रेस टू जीरो वन होता है, नहीं ये भी वन हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट डायरेक्टली इंटू एफ ऑफ जेड। तो इफ वी हैव गिवन अ पोल ऑफ ऑर्डर वन, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आर नॉट का जेड माइनस जेड नॉट से एफ ऑफ जेड को मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें जेड की जगह पे जेड नॉट रख दो। आपको यही दो केसेस आने वाले, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लास्ट में वो दो केसेस भी दे दिए, इतना कुछ इन जनरल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो पोल है ऑर्डर टू का, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है कौन से फंक्शन का, जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, देन वी हैव टू पुट जेड इक्वल टू जेड नॉट। एटलीस्ट रिमेंबर दिस टू फॉर्मुलेज फॉर पोल ऑफ ऑर्डर वन एंड फॉर पोल ऑफ ऑर्डर टू। एनी डाउट इन दिस पार्ट, एग्जाम्पल लेने वाला, बट ये थियरी में कुछ डाउट है क्या, पहले वो बोलो। ओके, सो डायरेक्टली टेक द एग्जांपल्स। लास्ट क्वेश्चंस, ये क्या है, सिंपल क्या है ये तो थ्योरम में ये ऑप्शन होगा। फॉर सिंपल पोल जेड नॉट मींस पोल ऑफ ऑर्डर वन, रेसिड्यू आर एट पोल जेड इक्वल टू जेड नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम। अभी है ना, आप बोलोगे कि यहाँ पे लिमिट क्यों आ रहा है, ये जो लिखा है ना मैंने नीचे जेड इक्वल टू जेड नॉट, इसको आप लिमिट में भी लिख सकते हो। दिस यू कैन राइट इट एज लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ऑफ एफ ऑफ जेड। ये सेम होता है, राइटिंग का ही डिफरेंस है। लिमिट में इसको चाहो तो लिमिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो जेड माइनस जेड नॉट ऑफ दिस होल टर्म। तो आपको समझ में आ रहा है, एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, इसको आप लिमिट में लिख सकते हो। नाउ टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल पोल है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड, सिंपल पोल में। ठीक है, सिंपल पोल है तो रेसिड्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप ये याद ही रखो, क्योंकि एग्जाम में उस पे ही ज्यादातर आपको क्वेश्चन रहेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर वन एंड पोल ऑफ ऑर्डर टू, उसके आगे नहीं होगा। अब ये जनरल फॉर्मूला उन्होंने पूछा है एन ऑर्डर का, तो आपको पता है एन माइनस वन फैक्टोरियल डी रेस टू एन माइनस वन डी जेड रेस टू एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू एन एफ ऑफ जेड कैलकुलेट एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ये जनरल फॉर्मूला है, मैंने दे दिया है। ठीक है, हाँ, अभी एक्चुअल रेसिड्यू कैलकुलेट कर लेते किसी एक एग्जाम्पल में। अभी ये पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, जेड इक्वल टू वन बाय फोर। टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पोल, ऑर्डर पे ही सारा खेल है, ऑर्डर क्या है बोलो, वन है, तो मतलब सिंपल पोल है। सिंपल पोल है तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस दैट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय गिवन फंक्शन, यही ऊपर लिखा है देखो, जेड माइनस दैट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय गिवन फंक्शन। ठीक है, और फिर इसको कैलकुलेट करना है एट जेड इक्वल टू वन बाय फोर, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, जेड इक्वल टू वन बाय फोर रख दो तो ऊपर आ जाएगा वन बाय फोर, नीचे क्या आ जाएगा वन बाय फोर माइनस वन बाय सिक्स। सो टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट, बोलो। सो इट इज वन अपॉन, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है क्या, ओके लुक करेक्ट, बोलो।
विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो, जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, टेल मी। 6 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ओके 3 आ रहा है ना, बट करेक्ट है। ये क्या होता है बेसिकली, सिंपल पोल में ये कैंसिल हो जाता है एंड डायरेक्टली जेड इक्वल टू 1/4 इसमें रख देना है, ये होता है सिंपल रिजल्ट। ठीक है, सो इट लुक करेक्ट, आई डोंट थिंक सो कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आप अभी आंसर तो हमारा 3 आ रहा है, सो विल कीप इट, विल कीप इट। इसमें देख लेते क्या है। अभी जेड इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करना है, ये भी सिंपल पोल है, आप नीचे देखो पावर 1 है, मतलब इसको कैंसिल करना है, डायरेक्टली जेड इक्वल टू 2 रख देना है, तो क्या मिलेगा आंसर मुझे बोलो। जेड इक्वल टू 2 रख देना है, पुट करना है डायरेक्टली। अगेन इट इज ए नहीं होगा, ये पाई रहेगा। या तो ये माइनस ये 6 होगा फिर, है ना। सो लेट मी टेक दिस एज अ 6, और ये आ रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आ चुका है, तो ये रॉन्ग है, मतलब जेड इक्वल टू 4 के लिए ये नहीं आया, मैच हो रहा था, वो रॉन्ग है। हम्म। अभी सेकंड क्वेश्चन में भी है ना, मुझे ये डाउट लग रहा है कि एक ए नहीं है यहाँ पे, ए है तो क्या सॉल्व होगा, मतलब आंसर ही ए जेड में आ जाएगा ना। सो ये पाई आप कंसिडर करो, साइन पाई जेड स्क्वायर कंसिडर करो, देखते हैं क्या आता है। ओके, अभी जेड इक्वल टू के लिए कैलकुलेट करना, तो जेड माइनस 2 को डिलीट करो, रिमेनिंग टर्म में जेड इक्वल टू रख दो, और बोलो क्या आता है, बोलो, आपको बोलना है। हाँ, क्योंकि साइन जेड टू मतलब साइन 4 पाई 0 होगा, कॉस 4 पाई 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 होगा, इट लुक 1। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन है, तो ज्यादातर सिंपल पोल पे ही आपको आने वाले, तो स्टिक टू दैट, ये जो फॉर्मूला है ना। ओके, या आप ये डायरेक्टली ट्रिक याद रखो, सिंपल पोल में क्या होता है, ये मैंने आपको बोल दिया है, जिस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है वो डिलीट ही कर दो, रिमेनिंग टर्म में वो पॉइंट पुट करो, दैट इज द फास्ट अप्रोच। ठीक है, अगर टू का पोल ऑफ ऑर्डर 2 का आता है, तो वो डिलीट करके, वो टर्म डिलीट करके आपको उसका डेरिवेटिव लेना है एक बार, एंड फिर उसमें वो वैल्यू पुट करनी है, दैट इज द सेकंड केस, उसके आगे आपको नहीं आने वाला, डोंट वरी, उसके आगे आपको नहीं आने वाला, दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, समझ में आ गया आपको? अभी इतना ही प्रिपेयर करना है, इसके आगे कुछ नहीं। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस लास्ट यूनिट।